Hello all, myself Lakhbir Singh, Senior Lecturer IT, Government Polytechnic College for Girls, Ludhiana. Today I am going to deliver my first lecture of software engineering, that is the system concept. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਸਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਐਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ in a systematic, disciplined and quantifiable manner is called software engineering। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਵੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਡਰਲੀ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਲਿੰਕਡ ਟੂਗੈਦਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਏ ਪਲਾਨ। ਪਲਾਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਟੂ ਅਚੀਵ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰ ਗਰੁੱਪਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਸਟਮ। ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਮਸ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਮਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੁੱਕ ਰਿਟਰਨ ਕਰਾਉਣੀ, ਫਾਈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਲਜ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, CD-ROM ਹੈ, CD-ROM ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਮਾਊਸ ਹੈ, ਮੋਡਮ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਸਿਸਟਮ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਗੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸਟ ਸਟਾਫ, ਕੰਸੀਰਜ, ਬੈਲ ਸਟਾਫ, ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ, ਨਾਈਟ ਆਡੀਟਰ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਆਪਰੇਟਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਇਹ 5 ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਾ। ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆਫ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ CEO ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਡਮਿਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ COO ਹੈ, VIP ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, IT ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, VP ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, VP ਆਫ ਸੇਲਸ,
VP of प्रोडक्शन, इदां करके उन्होंने एक हायरार्की बनाई है कि हर सारे कंपोनेंट्स नूं ऑर्गेनाइज किया होया एक स्ट्रक्चर दे विच। Next is organization of various components like input devices, output devices, CPU and storage devices in a computer system। हाँ जी, ये ऑर्गेनाइजेशन दसी गई है साडे कंप्यूटर सिस्टम दी। जिद्दां देखो इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, सेंटर दे विच CPU है, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, उहदे विच की आ रहा है कंट्रोल यूनिट, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट ते मैमरी यूनिट। ये सारे कंपोनेंट्स एक दूजे नाल ऑर्गेनाइज्ड तरीके दे नाल जुड़े हुए ने। नैक्सट इज इंटरैक्शन, मैनर इन विच ईच कंपोनेंट फंक्शनस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। हाँ जी, जिद्दां साडी इंटरैक्शन है, असी एक दूजे नाल कम्यूनीकेट करते हैं, चाहे वो वर्बली करते हैं ਜਾਂ मैसेजेस के थ्रू करते हैं, चाहे फोन के थ्रू करते हैं, ਉਹਨੂੰ बोलते हैं इंटरैक्शन। उस तरह जो अलग अलग कंपोनेंट्स एक सिस्टम के एक दूजे नाल इंटरैक्ट करते हैं, कम्यूनीकेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल कहता इन अ बिजनेस सिस्टम परचेज डिपार्टमेंट इंटरैक्ट विद प्रोडक्शन। हाँ जी, देखो परचेज डिपार्टमेंट है, उन्हें समान परचेज करना, कच्चा समान किन्ना परचेज करना, ये उन्होंने कौन दसूगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्योंकि प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करनी है तो दसेगा कि सानू इन्ना समान चाहिए है, तां ही इंटरैक्शन होएगी, तां प्रॉपर परचेज होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। कई बार जे मान लो इंटरैक्शन नहीं है तो हो सकता प्रोडक्शन समान चाहिए हो, परचेज ने परचेज ही ना किया हो, जां हो सकता है प्रोडक्शन को समान चाहिए ही नहीं, परचेज ने एक्सट्रा च परचेज कर लिया। इसलिए इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। सिमिलरली एडवरटाइजमेंट डिपार्टमेंट इंटरैक्शन विद द सेल्स। हुण देखो जिन्हें सेल्स करनी है उन्होंने सेल्स टोटली एडवरटाइजमेंट पर डिपेंड है। तुसीं देखते हो अजकल कोई वैबसाइट भी खोल लीए, ईवन आ इंस्टाग्राम है, इन्हां ते भी एडवरटाइजमेंट्स आंदियां ने ऑफ द प्रोडक्ट्स दियां, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। वो टोटली डिपेंड है एडवरटाइजमेंट पर कि एडवरटाइजमेंट जिन्नी एडवरटाइजमेंट होएगी उन्नी ही सेल ज़्यादा होएगी। उस तरह पेरोल डिपार्टमेंट विद परसोनल। हुण परसोनल दसेगा, पेरोल है जिन्हें सैलरी बनानी है इंपलाइज की, परसोनल है जिन्हें इंपलाइज का रिकॉर्ड रखना है। हुण परसोनल डिपार्टमेंट दसेगा पेरोल नूं कि इन्ने बंदियां दी सैलरी बनानी है तो इन्नी बनानी है, फिर ही सैलरी बनेगी। इसलिए इंटरैक्शन बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम दे विच। नैक्सट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस बच्चे सीधी सिंपल जी गल है कि हर एक जगह पर, चाहे असी भी आप नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की भी गल करिए कि असी एक दूजे ते डिपेंड हाँ, एक बंदा दूसरे ते डिपेंड है, दूसरा बंदा वापस तीसरे ते डिपेंड है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ देखो, इनपुट ऑफ वन कंपोनेंट इज द आउटपुट ऑफ अनदर कंपोनेंट। ठीक है, एक दी आउटपुट ਤੁਹਾਡੀ इनपुट है, ਤੁਹਾਡੀ आउटपुट अगले दी इनपुट है। मतलब जे मान लो 3 कंपोनेंट्स ने तो किसी दी आउटपुट अगले दी इनपुट है, ਉਹਦੀ आउटपुट अगले दी इनपुट है। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन वन अनदर। जिन्ने भी पार्ट्स ने सिस्टम के वो सारे एक दूजे ते डिपेंड करते हैं। आउटपुट ऑफ वन सब सिस्टम इज द रिक्वायर्ड इनपुट फॉर अनदर सब सिस्टम। हाँ जी, वो कहता एक सब सिस्टम की आउटपुट अगले सब सिस्टम की इनपुट है। देखो इतने 2 सिस्टम दसे ने उन्होंने, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इनफॉर्मेशन सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन की है बिजनेस स्ट्रैटजी रूल्स प्रोसैस, वो डिपेंड किहदे ते करदी है? इनफॉर्मेशन सिस्टम ते, वो सॉफ्टवेयर ते जिन्हें वो इनफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करनी। हुण इंटरडिपेंडेंसी है कि जिहड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफॉर्मेशन सिस्टम ते टोटली डिपेंड है। वो सॉफ्टवेयर दे विच हार्डवेयर, डाटाबेस, टैलीकम्यूनीकेशनस, ये सारे उन्होंने इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करनगे तां वो बिजनेस की स्ट्रैटजी बना सकता। नैक्सट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होंदी बच्चे कंप्लीट ऑल कंपोनेंट्स। देखो लिखा होया होलिज्म ऑफ द सिस्टम, हाउ ए सिस्टम इज टाइड टुगैदर, कि किदां वो कंपोनेंट्स अड अड बना तो लए आपां। ये 2 अप्रोचेस होंदियां ने, टॉप डाउन ते बॉटम अप, है ना। उन्होंने आपां बना तो लिया, बट उन्होंने किदां टाई करना एक दूसरे दे नाल। अलग अलग कंपोनेंट्स, ये प्रोग्रामिंग दियां अप्रोचेस होंदियां ने, टॉप डाउन, बॉटम अप, इन्होंने जोड़ के उन्होंने बनाती हाइब्रिड। हुण की है कि अलग अलग कंपोनेंट्स असी रेडी कर ले, हर कंपोनेंट ने आपदा रोल प्ले करता उस गोल नूं, एक पर्टिकुलर गोल नूं अचीव करन लई। बट एट लास्ट जिहड़ा साडा फाइनल गोल है, फाइनल ऑब्जैक्टिव है, उहनूं अचीव करन दे लई सानूं ये सारे कंपोनेंट्स नूं टाई करना पएगा टुगैदर, एक दूजे नाल जोड़ना पएगा। क्योंकि आप पिछे पढ़ चुके हैं कि एक दी आउटपुट दूसरे दी इनपुट है तो दूसरे दी इनपुट अगले दी आउटपुट है। इस तरह ये जे जुड़नगे तां ही वो पॉसीबल है। इस चीज़ नूं कहा जाता है इंटीग्रेट, कि असीं उन्हां नूं टाई करता टुगैदर। अचीविंग सेंट्रल गोल इज़ मोर इंपोर्टेंट दैन इंडिविजुअल गोल्स। हाँ जी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ने आपदा गोल तो अचीव कर लिया, बट मेन टास्क है जी कि जो अपना सेंट्रल गोल है वो अचीव करना। जिद्दां डायग्राम बनाई हुई है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, 4, 5, 6, इन्हां नूं सारिआं नूं टाई कीता गया टुगैदर।
हाँ जी, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कहता प्री डिटरमाइंड गोल्स। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव की है कि जो पहला गोल फिक्स किए गए हैं। हुण मान लो आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो वो असी ये क्या गया कि असी लाइब्रेरी को फुली कंप्यूटराइज्ड करना है कि कोई भी काम मैनुअली नहीं होएगा, सारा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होएगा। वो साडा सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है। हुण उस तो अगे कंपोनेंट्स आ गए कि असी बुक इशू करानी है, एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक बुक रिटर्न का बनेगा, एक फाइन कैलकुलेशनस का बनेगा, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड का बनेगा, एक न्यू स्टूडेंट का बनेगा, एक आई कार्ड लाइब्रेरी कार्ड्स जनरेट करने का बनेगा। कहता फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सिस्टम हैज़ द गोल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कहता हर एक सिस्टम का कोई ना कोई गोल होना चाहिए। जिदा वो कह रहा है कि इतने बिजनेस सिस्टम का गोल की है कि प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वह मेन टारगेट होएगा कि बिजनेस किदा उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है। सैकेंडली एक कॉलेज सिस्टम है। हम जिवें असी कॉलेज च पढ़ाने हैं, कॉलेज का साडा सिस्टम की साडा मेन ऑब्जेक्टिव की होंदा है कि जो भी साडे कोल स्टूडेंट आउंदा है वो एक सक्सैसफुल इंजीनियर बन के जावे ते अच्छी जॉब करे, अच्छा आपदा बिजनेस करे। हाँ जी, एलीमेंट्स ऑफ द सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के एलीमेंट्स दसे ने। इनपुट है, आउटपुट है, कंट्रोल, प्रोसैसर, फीडबैक, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, इन्वायरमेंट। हुण देखो ये सारे एक सिस्टम के कंपोनेंट्स ने। इनपुट कि उन्होंने इनपुट की चाहिए है, कि उन्होंने इनपुट मिलेगी। प्रोसैसर कि उन्हें उस इनपुट जी उन्होंने मिली है उन्होंने प्रोसैस किस तरह करना है। कंट्रोल कि कंट्रोल ने की करना है कि इन्फॉर्मेशन फ्लो भी कंट्रोल करना है प्लस प्रोसैसिंग भी कंट्रोल करनी है। इन्फॉर्मेशन किस तरह इंटरैक्शन किस तरह करवानी है, ये सारा कुछ कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल करता है। आउटपुट आ गई, फाइनल आउटपुट आ गई, उत्थे उन्हें फीडबैक है कि इनपुट में दोबारा कि ये तेरी आउटपुट सही है या नहीं। वो दसेगा कि जो तुम इनपुट दी वो अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड आई या नहीं। बाउंड्रीज एंड इंटरफेसिस कि वो जिहड़ियां बाउंड्रीज ने या इंटरफेसिस ने उन्होंने आउटपुट गई है। इन्वायरमेंट किस तरह के इन्वायरमेंट के विच सिस्टम काम कर रहा है। टाइप्स ऑफ द सिस्टम सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है। द सिस्टम पढ़िया, सिस्टम दी करैक्टरिस्टिक्स पढ़िया, एलीमेंट्स ऑफ द सिस्टम पढ़े। हुण एंड ते गल आंदी है टाइप्स ऑफ द सिस्टम कि सिस्टम दी टाइप्स की ने। बहुत सारिया टाइप्स ने, असी 3 डिस्कस करांगे जो साडे सिलेबस ने। सब तो पहला फिजिकल और अबस्ट्रैक्ट सिस्टम, सैकेंड है ओपन और क्लोज सिस्टम, थर्ड इज द स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। फर्स्ट है फिजिकल और अबस्ट्रैक्ट सिस्टम। फिजिकल सिस्टम जिदा नाम तो ही क्लीयर है कि जिन्हों असी फिजिकली टच कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम जिन्हों असी फिजिकली टच कर सकते हैं उन्होंने आप कहने हैं फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम्स आर टचेबल और रियल एंटिटीज, जिहड़ियां रियल एंटिटीज ने जो फिजिकली प्रेजेंट ने उन्होंने असी कहने हैं फिजिकल सिस्टम्स। लाइक कंप्यूटर, कॉलेज, होटल। देखो कंप्यूटर भी तुहाडे सामने पिया, तुसीं उहनूं टच कर सकते हो। कॉलेज तुसीं आने हो, कॉलेज भी बिल्कुल तुहाडे सामने फिजिकल है प्रॉपर। होटल च जाने हो, होटल भी फिजिकल है। कि वो चीज़ जिहड़ी रियल एंटिटीज ने उन्होंने असी की कहने हैं फिजिकल सिस्टम्स। अबस्ट्रैक्ट सिस्टम वो होंदे ने जिहड़े नॉन टचेबल होंदे ने। मीनस वो कंसैप्चुअली होंदे ने, कंसैप्ट होंदा उहदा, एक्चुअल च नहीं होंदे, प्रेजेंट नहीं होंदे, एक्चुअल च नहीं होंदे, उहदा कंसैप्ट हुंदा है, रियल च नहीं होंदे। लाइक लाइब्रेरी सिस्टम, ट्रैफिक। हम देखो लाइब्रेरी सिस्टम है, आप सॉफ्टवेयर तैयार करके देता बट आप सॉफ्टवेयर में टच तो नहीं कर सकते ना। जहाँ ट्रैफिक सिस्टम मॉडल है, लाइट रेड लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट हो रही है, वो पिछे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो साडे वो कंसैप्ट तो सानू समझ आ रहा है बट असी उन्होंने फिजिकली टच नहीं कर सकते। दैट दीज आर कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट सिस्टम, जिहड़े हिडन ने। अबस्ट्रैक्ट का मतलब है कि हिडन ने, कंसैप्ट्स है, कंसैप्ट सानू दिख रहा है बट असी उन्होंने फिजिकली टच नहीं कर सकते। नैक्सट इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जिहदा नाम तो क्लीयर है कि ओपन होएगा। इहदा की मतलब कि इहदा इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट। जिहड़ा भी ओपन सिस्टम होएगा वो अपने इन्वायरमेंट के नाल इंटरैक्ट करेगा, पहली कंडीशन है। सैकेंड की है रिसीव इनपुट फ्रॉम एंड डिलीवर आउटपुट टू आउटसाइड। किसी ना किसी तो इनपुट भी लेगा तो आउटपुट भी देगा, किसी ना किसी तो इनपुट भी लेगा तो आउटपुट भी देगा। ये ओपन सिस्टम है। रिएक्ट टू द चेंजेस इन इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट के चेंजेस होंदियां ने, जो भी उन्हें सिस्टम बनाया है उन्होंने इनपुट चेंजेस आउंदियां ने जां कोई आउटर इन्वायरमेंट चेंजेस होंदियां ने, वो उन्हां दे अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कहता बिजनेस सिस्टम। हुण बिजनेस है, मान लो मार्केट दे विच सेल वध गई तो प्रॉफिट वाल नूं जाएगा, सेल घट गई तो लॉस होएगा। मतलब वो ते असर होएगा उस चीज़ का, जो भी बाहर इन्वायरमेंट च हो रहा है उसका असर होएगा। बायोलॉजिकल सिस्टम साडा सिस्टम है, साडी बॉडी है, ये इन्वायरमेंट का ठंड का भी असर होंदा है, गर्मी का भी असर होंदा है, बारिश का भी असर होंदा है।
ਇਹ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਬੈਂਕ, ਕਾਲਜ ਐਟਸੈਕਟਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਨਾਈਦਰ ਰਿਸੀਵ ਇਨਪੁਟ ਨੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਐਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫਰਮ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜਸ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਰੇਅਰ ਨੇ, ਰੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨਪੁੱਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਊਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਊਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬਟ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸੀਲਡ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ। ਸਟੈਟਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਵਿਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਇਨਪੁੱਟ ਸੈਂਪਲ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਪੁੱਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦਾ yn = 9x ਦੀ n, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈਜ਼ ਇਨਪੁੱਟ xn but output at nth instant means yn depends on the input at the same time instant xn। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 9 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ n ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜੋ n ਦੀ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ yn ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਜੋ ਕਰੰਟ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਸਟਮ in which output at any instant of time depends on input sample at the same time as well as other time। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੱਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ yn = xn + 6xn - 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ n ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ n - 2 ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵੈਲਿਊ, ਕਿ ਇਹ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਊਰੀ ਹੋਵੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਫॉर यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।